Hello students, hope you all are doing good. I'm here with the next part of my lecture. In my last class, I did the stanza-wise explanation of the poem A Roadside Stand. I already explained the first and the second stanza of the poem. Today, I'm going to explain the third and the fourth stanza of this poem. Those who haven't seen till now, please switch to my last lecture of this chapter and then come to this video. So starting from the third stanza of the poem. Again you can see only a part of the poem which I am going to explain today. I only attached the third and the fourth stanza of the poem. I didn't attach the whole poem so that you can follow only the third and fourth stanza. You can follow the lines which I am going to explain you today. So let's start. The third stanza is like this. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promises that the party in power is said to be keeping from us. This is the third stanza of the poem. So, what does it mean? The poet's concern is not about the blemish on the landscape, but regarding the sorrows of the shed owners. Shed owners is the owners who had put up the roadside stand. The sack stand as a block against the beautiful backdrop of the greenery and the distant mountains, which spoil the surrounding according to the city dwellers. Okay, so the city travelers. According to the city travelers, the roadside stand usually spoil the look of the surrounding, which is a beautiful surrounding. For the travelers, the sack is a spoiler of the landscape, that is the roadside stand, as I told you. They avoid looking at the stall. They avoid the desires of the humble villagers' struggle to fight the hardships of life with a small amount of cash from the travelers' overflowing wallets. The indifference of the wealthy city folks is clearly disgusting. We can see a clearly disgusting picture of the wealthy city people. So, expressing the viewpoint of these people, the poet conveys their painful desire to hand some city money which may alleviate their condition as well as their sufferings, and sometimes promised in some movies. And the political party in power actually deprived them of a prosperous life. The political party, that is the government, okay, it is tilted, and we can see a clearly tilt in a favor of the city dwellers. The political party is clearly in a favor of a city people or the city dwellers. So, मतलब क्या होता है? ये जो रोड साइड स्टैंड लगाया गया है, जहाँ लगाया गया है, अक्सर जब सिटी डिवेलर, सिटी ट्रैवलर उसके सामने से पास कर रहे हैं, द पासेस बाय, दे पास इन देयर कार, ओके, दे यूजुअली कंप्लेन दैट, क्या कंप्लेन करते हैं? जो रोड साइड स्टैंड लगाया गया है वो सराउंडिंग का जो ब्यूटी है, उस जगह का जो ब्यूटी है जहाँ पे रोड साइड स्टैंड लगाया गया है, वो रोड साइड स्टैंड उस जगह का ब्यूटी को ख़राब कर रहा है. क्यों ख़राब कर रहा है? क्योंकि वो एक चीप स्टैंड की वजह से जो एक फार्मर अपने अर्निंग के लिए लगाया है. तो द सिटी travelers are complaining that the roadside stand
is spoiling the look of the beautiful surrounding. Okay, first. And जो फार्मर है, जो अपने फार्मिंग से उसको इतना इनकम नहीं हुआ है, दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट ही हैज़ पुट अप अ रोड साइड स्टैंड टू सेल सम वेजिटेबल्स और जूसेस. ओके, जो फार्मर्स हैं, दे आर इन एक्सपेक्टेशन दैट द सम ट्रैवलर्स विल कम सम डे. ओके, दे विल परचेज समथिंग, उन लोग कुछ खरीदेंगे उनसे, और सो दैट उन लोग को एक इनकम होगा. उस फार्मर को, उस रोड साइड स्टैंड ओनर को एक इनकम होगा. किसके थ्रू इनकम होगा? सिटी डिवेलपर्स के थ्रू, सिटी ट्रैवलर्स के थ्रू, दोज हु आर वेरी वेल्दी, वेरी रिच. एंड सो द पोएट इज referring them as they are having overflowing wallets. Okay, they are very rich, they are very wealthy, and they can buy some or the other thing from that very poor farmer. Okay, but they are least interested to buy something. उन लोग जो सिटी ट्रैवलर्स हैं, उन लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनसे परचेस करने के लिए. एंड द गुड्स द फार्मर, द स्टैंड ओनर इज सेलिंग, वो गुड्स खरीदने में उन लोग को ऐसा फील होता है सिटी ट्रैवलर्स को कि दैट इट्स बिलो देयर डिग्निटी. ओके, ये उन लोग के डिग्निटी के बिलो है ऐसा गुड्स खरीदना, वैसा सामान खरीदने में. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दे डू नॉट परचेस एनी वेजिटेबल्स और एनी गुड्स फ्रॉम द स्टैंड ओनर. बट पोएट जो है वो क्या कन्वे करते हैं, जो सिटी में अगर यही जो स्टैंड है, यही जो मोड ऑफ बिजनेस है, अगर यही मोड ऑफ बिजनेस विलेज पीपल जो अक्सर लगाते हैं रोड साइड में जो स्टैंड लगाते हैं, यही मोड ऑफ बिजनेस अगर वो सिटी में जाके करते हैं, ओके, यही वो विलेज में नहीं लगा के सिटी में जाके करते, तो उन लोग को इनकम अच्छा होता, उन लोग को एक अच्छा इनकम मिलता. ओके, एंड जो मनी आता, जो पैसा होता उन लोग के पास, उन लोग को अपना अर्निंग अच्छा खासा, उन लोग को जो लाइफ है उन लोग अच्छा खासा बीत जाता. एंड फॉर दैट दे विल नीड अ हेल्प फ्रॉम अ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी से उन लोग को हेल्प चाहिए, सो दैट उन लोग का अपना बिजनेस जो है सिटी में लेके एस्टैब्लिश कर सके, सिटी में जाके एस्टैब्लिश कर सके, पैसा कमा सके, और फिर अपने घर वापस आके अपने फैमिली को अच्छा एक लाइवलीहुड दे सके, जो कि विलेज में रह के वो अर्निंग, वो बिजनेस, मोड ऑफ बिजनेस पॉसिबल नहीं है. बिकॉज बिजनेस जो वो विलेज में कर रहे हैं, तब उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो नेग्लिजिबल हो रहा है. ओके, उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही कम हो रहा है. लेकिन वही अगर वो बिजनेस वो सिटी में जाके करेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इससे थोड़ा बेटर होगा. लेकिन इसके लिए दे नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. बट द पॉलिटिकल पार्टीज आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू हेल्प दिस पुअर रूरल पीपल. ओके, दिस इज द थर्ड स्टैंजा. नेक्स्ट, कमिंग टू द fourth stanza. It is in the news that all this pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at nights the ancient way. So, what is the meaning of the fourth stanza? The poet quotes the news which highlights the new relocation plan for these poor village people to the vicinity of the theatres and the shops, in the pretense of giving them a kind of comfort, you can say, of urban life. These simple folks will be forcefully uprooted from their land. उन लोग को ज़बरदस्ती अपने ही एंसेस्टर घर से निकाल दिया जाएगा. क्यों निकाल दिया जाएगा? सो दैट उन लोग अपना जो लिविंग है वो शहर में जाके करें, वो अपना जो
विलेज है, विलेज को छोड़ दें और अपना जो लिविंग है वो शहर में जाके करें. मेड टू लीव forcefully uprooted from the land and made to live inside the urban limits. Okay, urban limits में उन लोग को रहना होगा, जो कि उन लोग के विल के खिलाफ होगा. उन लोग जो नहीं चाहते हैं, विलेजर्स जो नहीं चाहते हैं, उन लोग को वो वहाँ पे जाके सेटल होना पड़ेगा जहाँ पे उन लोग का अपना घर नहीं है. और अपने घर को छोड़ के कहीं और जाना, इट्स नॉट राइट. ओके, तो दैट इज़ वाई द पोएट इज टेलिंग that they have to live inside the urban limits beside the theaters and the malls, and no one bothers. Okay, no one really bothers for them, no one bothers to take their consent. कोई उन लोग से पूछता नहीं है, विलेजर्स से, रूरल पीपल से पूछता नहीं है कि आप लोग को क्या चाहिए. आप लोग को अपने घर छोड़ के कहीं और जाके सेटल्ड होने में, अपना बिजनेस को परमानेंटली कहीं और जाके एस्टैब्लिश करने में कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई परेशानी है कि नहीं, कोई लोग से नहीं पूछता है. बिकॉज विलेजर्स ये चाहते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए सिटी में जाके अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर कुछ टाइम शॉर्ट इंटरवल में अपने फैमिली में आएंगे जो कि अपने विलेज में होंगे और अपने फैमिली को एक प्रॉपर लाइवलीहुड, एक प्रॉपर अर्निंग दे सकेंगे. लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करके, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि विलेज से लोगों को परमानेंटली लेके आया जाए सिटी में, उन लोग को वहाँ पे एस्टैब्लिश करवाया जाए, उन लोग का बिजनेस को, उन लोग वहाँ पे उन लोगों के लाइवलीहुड को. लेकिन जो विलेजर्स हैं, जो कि पुअर रूरल विलेजर्स हैं, उन लोग ये कभी नहीं चाहते कि अपना एंसेस्ट्रल घर छोड़ के वो सिटी में आके लाइफ लॉन्ग के लिए सेटल हो. ओके, सो नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट and not to study how the village people will feel in their new habitats. Obviously new, because एक जो विलेज में हमेशा से रहते हुए आए हैं, उन लोग को सिटी में रहना कभी पसंद नहीं होगा. ओके, they condemn them to live in the urban areas and the villagers will painfully struggle to adjust to the new ways of earning or living. Okay, so they will be in a painful situation and they will earn their living very painfully. This change will bring them misery and big promises have been made, जो अक्सर गवर्नमेंट हम लोग से करती हुई आई है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करती हैं हमारी अथॉरिटीज़, हमारी गवर्नमेंट अक्सर सिटीजन से, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो. लेकिन उनमें से हार्डली कुछ ही प्रोमिसेस हैं जो फुलफ़िल किया जाता है लोगों के बेनिफिट के लिए. तो बिग प्रोमिसेस हैव बीन मेड टू टेक गुड केयर ऑफ देम, बट द नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज़ or the government, even the social service agencies. The poet addresses them as greedy good doers. Okay, the poet is addressing them as greedy because लालची हैं उन लोग, क्योंकि उन लोग को खाली पैसों से मतलब है, लोगों के हित के लिए वो काम नहीं करते, लोगों के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं करते हैं. एंड दे आर द सो कॉल्ड फेक बेनिफैक्टर्स. फेक बेनिफैक्टर्स क्यों? बिकॉज उन लोग जो सामने वाला, उन लोग जो पुअर पीपल का बेनिफिट सोचते हैं, वो बेनिफिट फेक होता है. वो ये बेनिफिट हमेशा ऊपर से वो एक्ट करते हैं, दे आर एक्टिंग एज अ बेनिफैक्टर्स, बट एक्चुअली उन लोग को कोई मतलब नहीं है पुअर पीपल के, विलेज पीपल के बेनिफिट के लिए काम करने के लिए. ओके, बट एक्चुअली दे आर द बीस्ट ऑफ द प्रे. द पोएट इज रेफरिंग देम एज अ बीस्ट ऑफ द प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे, who exploit the innocent village people by giving them a short-term sense of security. The villagers are not being helped but harmed. The villagers को help तो नहीं मिलता है but harm मिलता है. हमेशा अक्सर जो गवर्नमेंट होती है हमारा हित के लिए नहीं काम करती है. मैक्सिमम टाइम में हमारे गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, हमें बर्बादी करती है. हम जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो बहुत ही कम टाइम के लिए ही बोल सकते हैं जो हमारे हित के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट
पूरी तरह तैयार रहती है। ओके, द विलेजर्स हियर टू पे अ हेवी प्राइजेस बाय लूजिंग देयर लैंड। ऑब्वियसली उन लोग को अपने एंसेस्ट्रल लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा रीज़न होगा उन लोग को अपना जो शहर अपना जो घर है, अपना जो लैंड है, उन लोग को छोड़ के एक नए जगह में सेटल होना उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दिस डेवलपर्स, दैट इज़ द ऑथोरिटीज़, had a strategy to silence and fool the hearts and mind of these villagers. ओके, उन लोग को हमेशा अक्सर बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऑथोरिटीज़ या गवर्नमेंट हमेशा अक्सर बेवकूफ़ बनाती है पुअर लोगों को, विलेज के लोगों को, और उन लोग को ये बताया जाता है उन लोग उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन लोग का बेनिफिट एक्चुअल में नहीं होता है। उन लोग का धीरे धीरे उन लोग का जो लाइफस्टाइल होता है, उन लोग का जो सोर्स ऑफ लिविंग होता है, उन लोग को धीरे धीरे उसको स्पॉइल किया जाता है। ओके, बट बाय इंश्योरिंग देम अ बेटर लाइफ एंड हेंस अ गुड स्लीप, उन लोग को ये बताया जाता है कि आप लोग को, यूजुअली आप लोग सब जानते होंगे, गवर्नमेंट हमेशा बताते हैं आप लोग को एक बेटर लाइफ दिया जाएगा, आप लोग को बेटर लाइफ स्टाइल दिया जाएगा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। दे एक्चुअली स्लीप पीसफुली। Who sleep peacefully? The authorities sleep peacefully. Okay, and destroy the slumbers of the innocent poor people. अक्सर जो लोग अक्सर वादे करते हैं, जो अथॉरिटीज़ अक्सर वादे करते हैं कि आप लोग को किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उन लोग कभी ये काम नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं करते ताकि पुअर पीपल का किसी भी चीज़ के लिए सल्यूशन मिल सके। ओके, द ऑथोरिटीज़ sleep peacefully, but and simultaneously at the same time they destroy the slumbers of the innocent poor people by giving them a sense of anxiety. In the ancient way, people used to work during the day. और पहले क्या होता था फिर, अगर विलेजेस को उठा के सिटी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो पहले क्या होता था कि people used to work during the day and slept in the nights, which has been reversed. सिटी में आने के बाद ये चीज़ ऑब्वियस है रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है, वी ऑल नो दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन अ सिटी लाइफ एंड अ विलेज लाइफ। एक रूरल और एक अर्बन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, which has been reversed here, where they are not able to sleep in night because they haven't worked in the day. और यहाँ पे अक्सर क्या होगा, आने के बाद उन लोग को ट्रांसफ़र करने के बाद विलेज से जब आके उन लोग सिटी में आएंगे, उन लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। उन लोग को ये चीज़ एहसास होगा कि वो रात भर उन लोगों को नींद नहीं आ रहा है। क्यों नींद नहीं आ रहा? क्योंकि वो दिन में अक्सर जो विलेज में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, वो हार्ड वर्क वो सिटी में उन लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रहा, उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो देयर सिंपल लाइफस्टाइल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड इन देयर न्यू हैबिटेट they will lose sleep, obvious है, and their life will become more difficult. Obvious. Why more difficult? Because they can't sleep properly, they can't earn so well, because obvious है कि उन लोग का एक रूटीन मेंटेन होता था विलेज में, और जैसे उन लोग सिटी में ट्रांसफ़र होंगे, उन लोग का जो रूटीन वो मेंटेन करते थे अपने विलेज में, अपने एंसेस्ट्रल लैंड में, वो रिवर्स होगा, वो पूरा ऑपोजिट हो जाएगा जब वो सिटी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि सिटी लाइफस्टाइल में अडैप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है उन विलेजर्स के लिए। ऑन द अदर हैंड, द मैनिपुलेटर्स इन द गार्ब ऑफ बेनिफैक्टर्स, जो कि बोलते हैं कि हम लोग बेनिफैक्टर्स हैं, हम लोग गुड डूअर्स हैं, हम लोग पुअर पीपल को बेनिफिट्स देते हैं, हम लोग पुअर पीपल का हित के बारे में सोचते हैं, गरीबों का हित के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, अथॉरिटीज़ हो, सोशल सर्विसेज हो, विल एन्जॉय देयर लाइफ्स इन अ ग्रेटर लग्जरी। उन लोग अपना लाइफ एंजॉय करेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ग्रेटर लग्जरी में, और उन लोग को एट द एंड ऑफ द डे उन लोग दे आर लीस्ट बॉदर्ड दैट पुअर पीपल को उन लोग का लाइवलीहुड सही से हुआ कि नहीं, उन लोग को अर्निंग सही से हुआ कि नहीं। बस उन लोग को बड़ी बड़ी बात बोलना है, उन लोग को बस बात बनाना होता है कि हम
आप लोग को ये फैसिलिटीज़ देंगे, आई प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी और दैट facilities, but in short, when the actual time comes, nobody is interested and nobody bothers about the poor people. Okay, so this are the two stanzas of the poem. ये दो stanza है poem का, the third and the fourth. This is a full detailed explanation, or stanza wise or line wise explanation you can say. Two more stanza is left, I think. Yes, fourth and the fifth and the sixth. Today I did the third and the fourth stanza explanation. In my next video I'll be doing the fifth and the sixth stanza explanation of the fifth and the sixth stanza and the conclusion of the poem. So here आप लोग, I think I explained you in details, quite details. I explained you the two stanzas. समझ में आया ही होगा. I think you all understood till here. Just go through the lines. Just keep your book in front of you. Go through the lines and play the video. Play my lecture. Okay. And listen to it carefully. If you are not getting any of the line, please play it again and again. Okay. In my next video, I'll be doing the rest explanation with you all. Till then, just go through the lines, go through this video. Okay. And just I want to tell you something before I end my lecture here. I divided the poem in 3 parts. You can see last online class, last lecture, I explained only 2 stanzas, first and second. In this class I explain third and fourth. Okay, and in my next class I'll be explaining fifth and sixth. So I divided the poem in 3 parts, and each class I'm just explaining 2 stanzas. There is a reason, because I don't want to explain the poem in a hurry. Okay, हम जल्दबाजी में आप लोग explain नहीं करना चाहते, and I am taking a time to explain you in details. Okay, so that is the only reason I am coming with only 2 stanzas, as it is a very long poem and very complicated poem too. And that is the only reason I'm explaining. Each class I'm explaining only 2 stanzas. होता तो obviously हम एक दिन में या 2 दिन में poem को complete कर सकते थे, but I'm not doing that. I divided in parts, in 3 parts. Each class I'll be doing 2 stanza explanation, so that it will be easier for you to understand. आप लोग आसानी से समझ पाएंगे. और जैसे ही पार्ट करते हैं पोएम को, डिवाइड किए हैं पोएम को, आप लोग को इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पोएम, द पोएम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल. सो उस पोएम जो कॉम्प्लिकेटेड है, उस पोएम को जैसे डिवाइड करेंगे, उसको आप अगर डिवीजन में समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई डिवाइडेड द पोएम फॉर योर बेनिफिट. हम आपका जो डिवीजन किए हैं पोएम को, एक्सप्लेनेशन का जो डिवीजन किए हैं, आई ओनली डिड इट फॉर योर बेनिफिट. ओके, so that you can get the explanation easier, you can understand the explanation of the poem easily. Okay, so meet you in my next class with the rest of the explanation of the poem. Okay, bye, goodbye.